Hello students, how are you all? Hope you all are safe and fine. Today we'll do lesson number 2, globe, the model of the earth. हाँ जी, globe धरती दा model. Our earth is very large in size. हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ. We cannot see the whole of the earth in its actual size and shape in one go. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. Therefore we use models, photographs and maps to see the earth or any part of it. ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਡਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ. ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਸਨ. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਲੈਸਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ. ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ. ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਰਥ ਦੀ. ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਅਰਥ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਅ ਬੋਲ. ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਸ਼ੇਪ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਸਫੀਅਰ ਔਰ ਅ ਸਫੀਅਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਗਲੋਬ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਲੋਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਇਨ ਫੈਕਟ ਦ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਫੀਅਰ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਕੰਪਰੈਸਡ ਐਟ ਦ ਪੋਲਸ. ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਧਰੁਵ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਪਟੀ ਆ. ਦ ਬੈਸਟ ਮਾਡਲ ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੋਬ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬ ਹੁੰਦਾ. It is 3-dimensional model and it shows the earth in its true shape. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰੈਪਾਸੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬ. ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. On the globe, the shapes, sizes, distances and direction of the continents and oceans are correctly represented. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰੀ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਮਹਾਦੀਪ, ਮਹਾਸਾਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ, ਅ ਗਲੋਬ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ ਰਿਪਲੀਕਾ ਆਫ ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦ ਅਰਥ as it shows accurate size and shape of all the physical features of the earth such as oceans and continents. ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਹਾਸਾਗਰ ਆ ਜਾਂ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਪਿਕਚਰ ਔਰ ਰੀਅਲ ਗਲੋਬ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲੋਬ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਰੀਅਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ. ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਸਕਰਿਊਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਅੱਪਰ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਗਲੋਬ. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਪੇਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. The upper screw is defined as north pole. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਕਰਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਯੂ ਸੀ ਅ ਲਾਈਨ ਦੈਟ ਰਨਸ ਫਰੋਮ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਕੁਏਟਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਏਟਰ. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਕੁਏਟਰ, ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਨ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾਨ ਬਾਈ ਦ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫॉर ਸਟੱਡਿੰਗ ਦ ਅਰਥ.
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ, ਆ ਨੀਚੇ ਤੇ ਉੱਪਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ वाला आ वाला की है नॉर्थ पोल, ठीक है, ते नीचे वाला की है साउथ पोल। ओके, पता लग गया? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं आप इक्वेटर। इक्वेटर भूमध्य रेखा, इट इज़ द इमेजिनरी लाइन that divides the earth in two equal halves, each half known as hemisphere। हाँ जी, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸਮਾਨ ਅੱਧ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ ਗੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਫ ਆਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਰਧ ਗੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, the upper hemisphere is known as the northern hemisphere, the lower hemisphere is known as the southern hemisphere, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਦ ਹਾਫ ਆਫ ਅ ਸਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸਫੀਅਰ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਗੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਧ ਗੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਿਤਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਹੈਵ ਡਰਾਨ ਅਦਰ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਔਨ ਦਾ ਗਲੋਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਣਾਈਆਂ। ਯੂ ਵਿਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਲਾਈਨਸ ਰਨਿੰਗ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਲ ਦੀਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਸਰਕੂਲਰ ਇਨ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਇਕੁਏਟਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਗੋਲਾਕਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪੈਰਲਲਸ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਤਕਾਰ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਦ ਲਾਈਨਸ ਦੋਜ਼ ਰਨ ਐਟ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮੀਟ with each other, may those be straight or circular। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 2.2 ਵਿਚ ਡਿਪਿਕਟਸ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦ ਲਾਈਨ ਡਰੋਨ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਔਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਦ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਦਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ 0 ਡਿਗਰੀ ਟੂ 90 ਆਰ ਆਲਸੋ ਡਰੋਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ
0 डिग्री तो लैके 90 डिग्री तक वो भी बनाए गए आ। द लाइन्स ड्रॉन नॉर्थ ऑफ द 0 डिग्री और इक्वेटर आर लेबल्ड विद एन। तो जड़ियाँ लाइन्स नॉर्थ तो ठीक है 0 डिग्री तो नॉर्थ वाल नूं चलदियां जां इक्वेटर तो उन्हां दे नाल एन लिखिया जांदा है। ठीक है। द लाइन्स ड्रॉन साउथ ऑफ द इक्वेटर आर लेबल्ड विद एस आर नोन एज सौदਰਨ लैटीट्यूड। हाँ जी, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਐਸ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੇਬਲਡ ਵਿਦ ਐਨ ਔਰ ਐਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਜਾਂ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਨੀਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। हाँ जी, हाँ जी, हुण आ सेंटर दे विच की आ इक्वेटर भू-मध्य रेखा हो गया। ठीक है। तो आ हो गया साउथ पोल तो इत्थे उपर की हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है। तो आ इक्वेटर तो उपर वाली साइड नूं आ सारा जिहड़ा हाफ पार्ट आ गया इनू आपां की कह दिंदे आ नॉर्दर्न हैमिस्फेयर। तो जिहड़ा इक्वेटर तो नीचे साउथ वाली साइड ते आ गया सारा हाफ उहनूं की कह दिंदे आ सौदਰਨ हैमिस्फेयर। ठीक है। आ सारियां टर्म्स तुसीं याद कर लो ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਕੁਏਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧਗੋਲਾ, ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧਗੋਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ठीक है उत्तरी ध्रुव ते नीचे साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो यह सेंटर च की है ईस्ट टू वैस्ट इक्वेटर जिन्होंने आप कह दें भू-मध्य रेखा। क्लियर हो गया। Thus there are 90 imaginary lines drawn to the north of the equator and 90 imaginary lines to the ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ 90 ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ 90 ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਟ ਮੇਕਸ 181 ਪੈਰਲਲਸ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਇਨ ਆਲ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ 181 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 1 ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 90 ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ 181 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇਕੁਏਟਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਦਰ ਸਰਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਕੁਏਟਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ। 90 ਡਿਗਰੀ ਐਨ ਐਂਡ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਸ ਆਰ ਦਾ ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਜ਼ ਸਰਕਲਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ go on decreasing till the points in north and south। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਇਕੁਏਟਰ ਇਜ਼ ਮੇਜਰਡ ਇਨ ਡਿਗਰੀਜ਼। ਈਚ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਮਿੰਟਸ ਐਂਡ ਈਚ ਮਿੰਟਸ ਇਨਟੂ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਰਲਲਸ ਆਫ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਰਲਲਸ ਹੈਗੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਕੁਏਟਰ ਆ ਗਿਆ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 0 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ 23/1/2 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕ ਰੇਖਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਉਨੇ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ 23/1/2 ਸਾਊਥ।
ठीक है। तो उत्थे की आ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन जिन्होंने आप कह दें मकर रेखा, ठीक है। तो इसी तरह फिर ऊपर देखो 90 डिग्री नॉर्थ पोल के कोल जिहड़ा 66(1/2 डिग्री नॉर्थ उत्थे किहड़ा सर्कल आ आर्कटिक सर्कल। तो इसी तरह इन्नी डिस्टेंस ते 63(1/2 डिग्री साउथ ते किहड़ा हैगा अंटार्कटिक सर्कल। आ चीज़ां हुण तुसीं इह चों सारियां याद करनियां। नंबर 1 ते कर लो एक तां इक्वेटर किन्ने ते आ 0 डिग्री, ठीक है। उस तो बाद दोनों साइडां दे कर लो 90 डिग्री ते टॉप ते नॉर्थ थल्ले की आ साउथ पोल, ठीक है। उस तो बाद कर लो उपर वाले जी नॉर्थ वाली साइड ते किन्ने डिस्टेंस ते हैगी आ वाला डिस्टेंस याद रखना। उपर वाले ना नॉर्थ लिखना तो नीचे वाले ना साउथ लिखना, ठीक है। तो फिर तुसीं इन्हां दे नाम याद रखने आ। उपर की आ 23(1/2 डिग्री ते नॉर्थ आ, नॉर्थ के उपर की आ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ, तो इन्ने डिस्टेंस के नीचे की आ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन आ, ओके। तो अगे आ गए सर्कल 66(1/2 डिग्री नॉर्थ ते किहड़ा सर्कल आ आर्कटिक, तो इन्नी डिस्टेंस के नीचे साउथ के विच किहड़ा सर्कल आ अंटार्कटिक सर्कल। इन्नियां जिहड़ियां टर्म्स हैगियां इहदे चों तुसीं इह याद रखणे आ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैगे आ लैटीट्यूड दे, ठीक है। आ सेम वही चीज़ां डिस्क्राइब कीतियां जिहड़ियां ऑलरेडी मैं तुहानूं उपर दसतियां, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लो सम इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। द इक्वेटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल्स और लैटीट्यूड। हाँ जी, हुण जिहड़ा इक्वेटर हैगा यही सब तो महत्वपूर्ण पैरेलल हैगा जां लैटीट्यूड हैगा। एज यू हैव ऑलरेडी रेड द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट्स। हाँ जी, हुण आपां ऑलरेडी पढ़िया कि जिहड़ा इक्वेटर आ भूमध रेखा आ वो अपनी अर्थ नूं 2 समान भागां दे विच डिवाइड करदे आ, ठीक है। बिसाइड्स इक्वेटर द इंपॉर्टेंट पैरेलल्स और लैटीट्यूड आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिचुएटेड एट एन एंगुलर distance of 23(1/2 degree north in the northern hemisphere and the tropic of Capricorn situated at an angular distance of 23(1/2 degree south in the southern hemisphere, ठीक है। सेम ऊपर आप देख के आए हैं कि इक्वेटर तो इलावा होर इंपॉर्टेंट जिहड़े लैटीट्यूड्स हैगे आ एक तां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ, ठीक है, जिहड़ी कि 23(1/2 डिग्री नॉर्थ च हैगी नॉर्थन हैमीसफेयर दे विच। ते इसी तरह नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन आ जिहड़ी कि 23(1/2 डिग्री साउथ दे विच आ ते ओह साउथर्न हैमीसफेयर च आ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट मिडवे थ्रू इंडिया, ठीक है। तो जिहड़ी हुण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैगी आ ओह लगभग इंडिया दे बिल्कुल विचकारों दी क्रॉस करदी आ, ठीक है। द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल सिचुएटेड एट 66(1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 66(1/2 डिग्री साउथ रिस्पैक्टिवली आर 2 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, ठीक है। तो सेम आप उस ऊपर पढ़े ही है कि आर्कटिक सर्कल जिहड़ा एक ते दूसरा अंटार्कटिक सर्कल आ जिहड़े कि 66(1/2 डिग्री नॉर्थ ते साउथ दे विच सिचुएटेड हैगे आ। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैगे आ, ठीक है, ओके। तो हुण चंगी तरह क्लीयर हो गया दोनों ये, ओके। नैक्सट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लैटीट्यूड। हाँ जी, लैटीट्यूड्स हैव इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ओन। लैटीट्यूड की भी अपनी इंपॉर्टेंस है ना, की इंपॉर्टेंस है अपने लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय मीनस ऑफ द लैटीट्यूड वी कैन वेरी ईजिली फॉर्म एन आइडिया ऑफ द टैंपरेचर ऑफ अ प्लेस, ठीक है। सब तो इंपॉर्टेंस ज़्यादा ये की हैगी कि ये आप ईजीली पता लगा सकते हैं कि किसी जगह का तापमान कितना है। एज वी नो दैट वैन वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर नॉर्थवर्ड्स एंड साउथवर्ड्स कॉन्सिक्वेंटली विद द हेल्प ऑफ लैटीट्यूड वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू हीट जोन्स, ठीक है। तो हुण आपां जदों देखना आ कि किते टैंपरेचर जिहड़ा कितना आ, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जदों आप इक्वेटर तो नॉर्थ वाली साइड नूं जाने आ जां साउथ वाली साइड नूं आउने आ, ठीक है। हैल्प कादी हैल्प दे नाल आपां लैटीट्यूड्स की हैल्प दे नाल, ठीक है। तो उहदे आधार ते आपां जिहड़े अर्थ हैगी आ उहनूं अलग अलग हीट जोन्स दे विच डिवाइड कर लैंदे आ। हीट जोन्स का मतलब की हुंदा तापखंड, ठीक है, ओके। तो आप उन्होंने हीट जोन्स दे विच डिवाइड करते हैं। टैंपरेचर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग दैट इज़ इफ तो टैंपरेचर उदों तापमान जिहड़ा वो घटदा जांदा है तो जदों असी
if a place is situated at 10 degree north or south of equator, it will be a hot type, and if a place is at 50 degree north or south of equator, it will be colder। ठीक है, ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इक्वेटर तो 10 डिग्री नॉर्थ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ठीक है, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ज़्यादा हॉट ਹੁੰਦੀ ਆ, ठीक है, गर्मी ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ इक्वेटर ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ इक्वेटर ਦੇ ਉੱਪਰ सन ਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ठीक है, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈ 10 डिग्री तक नॉर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨੀਚੇ 10 डिग्री ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ हॉट ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ओके, तो बट जे आप उत्थों 50 डिग्री उपर चले जाते हैं नॉर्थ वाली साइड में, ਜਾਂ 50 डिग्री नीचे साउथ वाली साइड में आ जाने इक्वेटर तो फिर उत्थे की होएगी, ठंडक होंदी है, कोल्डर होएगा वो, ठीक है, उहदे नालों। सैकेंडली, विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड रफली इक्वल्स टू 111 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अनदर लैटिट्यूड। हाँ जी, दूसरा एक इंपॉर्टेंस ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, 111 किलोमीटर ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। Therefore, a place 5 degree N of the equator will be 555 kilometers, ठीक है, away towards the north from the equator। ਹੁਣ ਆ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਆ कि मान लो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 5 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, 555 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਡਿਗਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 111 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 555 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ 555 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ। ਥਰਡਲੀ, along with longitude, latitude helps us to find out the exact location of a place। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, हुण लॉन्गिट्यूड की हुंदा दिशांतर जां लंबकार, है ना। देयर आर अदर लाइन्स ऑल्सो, दोज रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरैक्शन। हाँ जी, हुण जदों आपां ग्लोब ते देखदे हां ते कुछ होर इमेजनरी लाइन्स भी हुंदियां आ ਜਿਹੜੀਆਂ कि नॉर्थ तो साउथ डायरैक्शन ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। दीज आर नॉट पैरेलल लाइन, ते ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। दीज आर नॉट सर्कुलर इवन, ਤੇ ਇਹ सर्कुलर भी नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ठीक है, गोलाकार भी नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। दीज सैमी सर्कुलर लाइन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरेडियंस, ठीक है। तो हुण ਜਿਹੜੀਆਂ सैमी सर्कल अर्ध गोलाकार लाइन्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, लंबकार ਜਾਂ दिशांतर, ठीक है। For the purpose of convenience, it was decided that meridian which passes through Greenwich in England should be regarded as the prime meridian, and counting of meridians should begin from prime meridian। हाँ जी, हुण ये डिसाइड किया गया कि सही तरीके दे नाल समझिया जा सके, तो इसलिए की किया गया कि जिहड़ी मेन मैरीडियन हैगी आ, जिहड़ी कि मन ली गई है कि इंग्लैंड दे विच ग्रीनविच जिहड़ी प्लेस हैगी आ उत्थों दी जांदी आ, उहनूं ही प्राइम मैरीडियन मान लिया गया, ठीक है। उहनूं की मान लिया गया, प्राइम मैरीडियन मान लिया गया, मुख माध्यम है ना, रेखा। तो ये तो ही दूसरे मैरीडियन तक की जिहड़ी काउंटिंग है वो कीती जांदी है, ठीक है।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾइम ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਫਿਗਰ 2.4 ਪ੍ਰਾइम ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 0 ਡਿਗਰੀ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾइम ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ? 0 ਡਿਗਰੀ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ ਤੇ। देयर आर 360 degree longitude drawn through the equator with an equal interval of 1 degree. 180 meridians are drawn to the east of the prime meridian and are followed by letter E, and those 180 to the west are followed by the letter W. हाँ जी, तो इत्थे टोटल 360 डिग्री लॉन्गटीट्यूड हैगे आ, ठीक है। 360 लॉन्गटीट्यूड जिहड़े आ ड्रॉ किए गए आ, ठीक है, इक्वेटर तो। ते उन्हां दे विच भी जिहड़ा डिस्टेंस हैगा ओह इक्वल हैगा, ठीक है, सारियां दे विच। ते 180 मैरीडियन जिहड़े आ ओह ईस्ट वाली साइड नूं बनाए गए आ प्राइम मैरीडियन तो, ते उन्हां दे नाल ई लिखिया जांदा है। ते इसे तरह 180 वैस्ट वाली साइड नूं ते उन्हां दे नाल W लिखिया जांदा है, ठीक है। एज द 180 longitude is the same line to the east or to the west, it is neither followed by letter E or nor by W। हाँ जी, हुण क्योंकि जिहड़ी 180 डिग्री लॉन्गटीट्यूड आ वो सेम लाइन दे उत्ते ही हैगा, ईस्ट ते भी ते वैस्ट ते भी, इसलिए इहदे नाल ना तां E लिखिया जांदा ते ना ही W लिखिया जांदा है, ठीक है। हाँ जी, इत्थों क्लीयर हो जाएगा तुहानूं इस डायग्राम तो। हाँ जी, हुण ये हैगे आ मैरीडियंस ऑफ लॉन्गटीट्यूड, ठीक है, दिशांतर। ओके, हाँ जी, हुण ये भी सेम आ सेंटर दे विच जिहड़ा हैगा 0 डिग्री प्राइम मैरीडियन आ गया, ठीक है, और इधर वाली साइड सारी ईस्ट वाली साइड हो गई और इधर वाली सारी वैस्ट वाली साइड हो गई। आह नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गए, ठीक है। हुण 0 डिग्री तो लैके जे नॉर्थ वाली साइड नूं आने आ इधर वाली साइड, तां इत्थे भी किन्ने हैगे आ मैरीडियंस टोटल 180 डिग्री, है ना। तो उस तरह ही वैस्ट वाली साइड ते भी किन्ने आ 180, ठीक है। तो टोटल किन्ने हो गए 360। ओके, डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन is also measured in degrees called degrees of longitude, which are further divided into minutes and seconds, ठीक है। हुण जिहड़ा डिस्टेंस हैगा मैरीडियंस दा एक तो दूसरे तक दा, ठीक है, ओनू भी काहदे विच मैजरमेंट ओहदी कीती जांदी आ, वो भी डिग्रीज़ दे विच ही कीती जांदी आ, ते इहनू आपां डिग्रीज़ ऑफ लॉन्गटीट्यूड कह दिंदे आ, ठीक है। ते उस तो बाद इहनू अगे काहदे च डिवाइड कीता जांदा मिनट्स दे विच, ते मिनट्स नू सैकेंड्स दे विच कीता जांदा। अगे आ गया हुण इंपोर्टेंस ऑफ लॉन्गटीट्यूड, ठीक है। हुण जिहड़ी दिशांतर हैगे आ, ठीक है, जां लंबकार हैगे आ, इन्हां दी की महत्ता हैगी आ, लॉन्गटीट्यूड दी की इंपोर्टेंस हैगी आ। लाइक द लैटीट्यूड, ठीक है, लैटीट्यूड्स की तरह ही द लॉन्गटीट्यूड ऑल्सो गॉट इंपोर्टेंस ऑफ इट्स ओन, इन्हां दी भी उन्नी ही महत्ता हैगी आ। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गटीट्यूड वी आर एबल टू नो द east west distance of a place. That is, when we say that Ludhiana is on 76 degree east longitude, it means that Ludhiana is 76 degree east to the prime meridian, ठीक है। हुण जिस तरह आपां लॉन्गटीट्यूड देखे सी कि उन्हां दी इंपोर्टेंस कित्थे कित्थे हैगी आ, उसे तरह ही जिहड़े लैटीट्यूड्स हैगे आ इन्हां दी भी इंपोर्टेंस, हाँ जी, इन्हां दी हैल्प दे नाल आपां नूं ईस्ट तो वैस्ट जिहड़ा डिस्टेंस हैगा किसी जगह दा वो पता लग जांदा, ठीक है। जदों आपां कहंदे आ कि लुधियाना 76 डिग्री ईस्ट ते हैगा लॉन्गटीट्यूड ते इहदा मतलब की होया कि जिहड़ा लुधियाना आ वो 76 डिग्री ईस्ट प्राइम मैरीडियन तो डिस्टेंस ते हैगा, ठीक है। प्राइम मैरीडियन तो 76 डिग्री ईस्ट ते है लुधियाना। Secondly, with the help of meridian of longitude, we can very easily calculate the local time of a place, that is the country situated in east of Greenwich। ते दूसरी चीज़ कि आपां इन्हां दे नाल ईजीली किसी जगह का जिहड़ा लोकल टाइम हैगा उहदे बारे भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि ਜਿਹੜੀਆਂ ग्रीनविच तो ईस्ट साइड ते हैगियां सिचुएटेड हैगियां कंट्रीज़ उत्थे टाइम कितना होया। देयर टाइम इज़ कैलकुलेटेड 4 मिनट्स पर लॉन्गटीट्यूड अहेड, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ईस्ट वाली साइड ते हैगियां उत्थे जिहड़ा टाइम हैगा ਉਹ
4 मिनट अगे मन्निया जाता है, ठीक है। एंड द कंट्री सिचुएटेड एट द वेस्ट ऑफ ग्रीनविच कैलकुलेट देयर टाइम्स 4 मिनट्स पर लॉन्गटीट्यूड बिहाइंड। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ग्रीनविच ਦੇ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ। ਔਨ ਦ ਹੋਲ the countries or places situated to the east are ahead in time because the earth rotates from west to east direction. The day begins earlier in eastern parts than that of western parts, ठीक है। हाँ जी, हुण जदों आपां देखदे हां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸਟਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। जी नैक्सट आ गया ग्रिड। हाँ जी, ग्रिड की होंगे आ, ग्रिड नूं आपां पंजाबी च कह दिंदे आ जाल, जाल ग्रिड। हाँ जी, ग्रिड नूं आपां पंजाबी च कह दिंदे आ जाल। ऑन द मैप एंड ग्लोब देयर इज़ अ नेट ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन। दिस नेट इज़ कॉल्ड ग्रिड एज शोन इन फिगर 2.5। हाँ जी, जो आपां मैप ते जां ग्लोब ते देखदे आ ते आपां नूं उत्थे एक जाल दिखाई दिंदा आ, ठीक है, लैटिट्यूड का, समानांतर रेखावां का, ठीक है, जां दिशांतरां का, ठीक है, एक जाल दिखाई दिंदा है। दिस नैट इज़ कॉल्ड ग्रिड। तो इस नैट नूं ही आपां की कह दिंदे आ, ग्रिड कह दिंदे आ। जिस तरह आ पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। हुण इह च सारियां लाइनस जिहड़ियां उन्हां नूं ही आपां कह दिंदे आ ग्रिड। जदों ये दोनों एक दूजे दे नाल अटैच हो जांदियां ते एक जाल बना दिंदियां, ठीक है। यही लॉन्गटीट्यूड ते लैटिट्यूड वालियां लाइनस हैगियां, ठीक है। हाँ जी, हुण आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रिड। हुण इंपॉर्टेंस की है ग्रिड की इंपॉर्टेंस है इस जाल की। दिस ग्रिड इज़ हैल्पफुल इन मेकिंग मैप्स एंड एटलस। पहली गल तो यही ग्रिड हैल्प करते आपां नूं मैप बनाउण दे विच जां एटलस बनाउण दे विच। वी कैन रीड मैप्स विद द हैल्प ऑफ ग्रिड, दैट इज़ इफ वी नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गटीट्यूड ऑफ अ प्लेस वी कैन लोकेट इट ऑन अ मैप वेरी ईजीली, ठीक है। तो जदों आपां मैप्स ग्रिड की हैल्प दे नाल मैप रीडिंग करते हैं तो फिर जे आपां नूं ये पता होवे भी लॉन्गटीट्यूड ते लैटिट्यूड किसी जगह का कितना आ, ठीक है, तो आपां मैप दे उत्ते वो जगह जल्दी लभ लैंदे आ। सैकेंडली दिस हैल्प्स इन फिक्सिंग द बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज़ विद द हैल्प ऑफ दिस ग्रिड वी कम टू नो टू विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गटीट्यूड अ पर्टिकुलर कंट्री एक्सटेंड्स। तो दूसरी गल ये साडी हैल्प करती है जानन दे विच कि दो कंट्रीज़ की बाउंड्री जिहड़ी वो कित्थे तक हैगी आ, ठीक है। ग्रिड की हैल्प दे नाल ही आपां नूं ये पता लगदा कि कित्थों तक किसी कंट्री का लैटिट्यूड हैगा जां लॉन्गटीट्यूड हैगा। तो उस बेसिस ते आपां नूं उहदी जिहड़ी हैगी बाउंड्री वो पता लग जाती है, ठीक है। लॉन्गटीट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ सम ऑफ द प्लेसिस ऑफ इंडिया। हुण नीचे एग्जाम्पल दिती हुई है, कुछ प्लेसिस के लॉन्गटीट्यूड ते लैटिट्यूड दिते हुए आ, इहनूं याद कर लियो, ठीक है। नेम ऑफ अ सिटी, लैटिट्यूड, लॉन्गटीट्यूड। हाँ जी, सारियां उपर वालियां पंजाब दी हैगियां ना, गुरदासपुर, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता। हाँ जी, तो सामने सामने ये किन्ने डिस्टेंस ते हैगियां, ठीक है, किन्ने लैटिट्यूड ते हैगियां ते किन्ने लॉन्गटीट्यूड ते हैगियां। ये एक एग्जाम्पल दी हुई है तुहानूं, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ दी। यस, नैक्सट इज़ लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। हाँ जी, किसी जगह का लोकल टाइम तो जां फिर जिहड़ा आपां स्टैंडर्ड टाइम मन्निया वो की हुंदा। एज द लोकल टाइम डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इट कॉजेज ग्रेट इनकनवीनियंस फॉर द कंट्री ऑन द होल, ठीक है। कि हुण जिहड़ा किसी जगह का टाइम हुंदा है ना, एक जगह तो दूजी जगह का वो भी अलग अलग ही हो जाता, ठीक है। तो जिहदे नाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आउंदियां हैं, ठीक है। पूरे देश के लिए आपां जो देखना होवे भी टाइम कितना होया। देयरफॉर ईच कंट्री अडॉप्ट्स लोकल टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर और रादर अ सेंट्रल प्लेस एज द यूनीफॉर्म टाइम फॉर द होल कंट्री।
तो इसलिए हरेक जिहड़ा देश हैगा वो अपने अपने अकॉर्डिंग एक लोकल टाइम जिहड़ा अडॉप्ट कर लैंदा, ठीक है। कोई सैंट्रल प्लेस मन के उहदे बिहाफ ते सारे देश दे लई इक्को ही टाइम जिहड़ा आ वो मन लिया जाता। इट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री और दैट एरिया। तो इसे नूं ही उस जगह का, उस एरिए का जां उस देश का स्टैंडर्ड टाइम मन लिया जाता। इन इंडिया द लोकल टाइम ऑफ 82 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ यूज्ड एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो भारत दे विच 82 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड नूं ही अपना स्टैंडर्ड टाइम मन्निया गया पूरे देश दे लई। इट इज़ कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इनू आपां की कह दिंदे आ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82 1/2 डिग्री ईस्ट इज़ दस द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। रिमेंबर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 82 1/2 डिग्री इंटू 4 मिनट्स इक्वल टू 330 मिनट्स और 5 hours 30 minutes ahead of the ग्रीनविच टाइम, ठीक है। हुण आपां पढ़िया सी कि ग्रीनविच तो जिहड़ियां ईस्ट वाली साइड ते हैगियां कंट्रीज़ उत्थे टाइम उहदे नालों आपां 4 मिनट्स वध मन लैंदे आ। ते अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किन्ना मन्निया आपां 82 1/2, इसलिए 4 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करता ते किन्ने मिनट्स बन गए 330, ठीक है। उस तो बाद ये आवर्स इनू आप जे कन्वर्ट करते हैं तो यह कितना बन गया 5 hours 30 minutes, ठीक है। सो 5.5 घंटे ग्रीनविच टाइम तो अगे है अपना टाइम। दस द वॉचेस इन इंडिया विल शो 5:30 PM, ठीक है, वैन इट इज़ 12 noon इन इंग्लैंड, ठीक है। तो जो इंडिया दी घड़ियां दे उपर 12:30 शाम के बजे होंगे आ तो इंग्लैंड दे विच उदों कितना हुंदा टाइम दोपहर के 12 बजे होंगे आ, ठीक है। सो 5.5 घंटे का डिफरेंस हैगा। हीट जोनस ऑफ द अर्थ, हाँ जी, हीट जोनस की होंगे आ तापखंड, है ना, जितों आपू किसी जगह का टैंपरेचर के अकॉर्डिंग जोड़ा उस जगह में वंडिया गया होंगे कितने वध आ टैंपरेचर कितने घट आ, है ना, उन्होंने आप हीट जोनस कह दें। हुण अर्थ के हीट जोनस किहड़े आ? एज डिस्कस्ड अबव, लैटीट्यूड हैल्प अस इन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू डिफरेंट हीट जोनस, ठीक है। जिस तरह आप उपर डिस्कस किया सीगा कि जोड़े लैटीट्यूड्स है वो अपनी हैल्प करते हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि धरती के उपर किन्ने हीट जोन्स है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द रीजन द रेज ऑफ द सन विच आर वर्टिकल ऑक्यूपाई लैस स्पेस बट इंटेंसिटी ऑफ हीटिंग इज़ वेरी हाई एंड द रेज ऑफ द सन विच आर स्लैंटेड ऑक्यूपाई मोर स्पेस बट इंटेंसिटी ऑफ हीटिंग इज़ लो, ठीक है। हुण की हुंदा जदों जिहड़ा इक्वेटर हैगा उत्थे की हुंदा जिहड़ियां सन रेज हैगियां ओह सिद्धियां पैंदियां डायरैक्ट, ठीक है, तो वह घट जगह घेरदियां आ ते उत्थे हीट वध हुंदी आ, ठीक है, उत्थे गर्मी वध हुंदी आ, ओके। तो जिथे जाके सूरज दियां जिहड़ियां रेज हैगियां सूरज दियां किरणां आ वो तिरछियां पैंदियां स्लैंटेड हुंदियां, ठीक है, वो जगह वध घेरदियां हीट हैगी आ वो घट हो जाती है, मीनस गर्मी भी घट हो जाती है। द सैकेंड रीजन बिहाइंड द हीट जोन्स इनफॉर्मेशन इज़ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। तो दूसरा जिहड़ा कारण हैगा हीट जोन की फॉर्मेशन का वो ये आ कि जिहड़ी धरती की शेप आ वो भी की आ गोलाकार आ। द सेंट्रल bulging part of the earth receives maximum heat of the sun as we go away from the central part towards the poles. The heat zones, the heat reduces, ठीक है। तो जिहड़ा सेंट्रल पार्ट हैगा धरती का उत्थे की हुंदा सब तो वध जिहड़ी सूरज की गर्मी आ वो उत्थे पहुँचती आ, ठीक है। तो जदों आप सेंट्रल पार्ट दे वल तो पोल्स वल नूं जाने आ, ठीक है, तो हीट की हुंदी आ वो घटदी जाती है। ऑन दिस बेसिस वी हैव रिकगनाइज्ड ब्रॉडली 3 टैंपरेचर जोनस, ठीक है। तो इस आधार पर आपां जिहड़ी अपनी धरती आ उहनूं किन्ने टैंपरेचर जोनस दे विच डिवाइड कर लिया 3 टैंपरेचर जोनस दे विच, ठीक है। हाँ जी, हुण आ गए अपने हीट जोनस ऑफ अर्थ। आ देखो सेंटर च सी इक्वेटर, इस करके इन्हां दे विच इत्थे 23 1/2 डिग्री तक इत्थे नॉर्थ सी, इधर सीगा साउथ, है ना, तो इत्थे हॉट जोन आ गया, ठीक है। इत्थे सब तो वध ज़्यादा जिहड़ियां सूरज की रोशनी सीधी आ तो इत्थे गर्मी वध आ, ठीक है। उदों बाद जो उपर वाली साइड नूं जाने आपां तो इधरों ही उन्ने डिस्टेंस लिए नीचे आ जाने आ तो ये इत्थे की हो गया
थोड़ी जी घट होर ज़्यादा घट होगी, ना बहुती गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। इनू आप फिर नाम दे देंगे नॉर्थ टैंपरेचर जोन का, है ना। इधरले नू साउथ टैंपरेचर जोन। उस तो बाद जो फिर उपर वालों नॉर्थ पोल वाली साइड में जाने, ठीक है, उत्थे की आ गया फ्रिजिड जोन, नॉर्थ वाली साइड भी तो साउथ वाली साइड भी। मीनस उत्थे जाके फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है। ये इस डायग्राम च डिस्क्राइब किया। बाकी आप हाँ जी, बाकी आप इस पढ़ लें। हाँ जी, नंबर 1 हॉट जोन और टॉरिड जोन। हाँ जी, हुण जिहड़ा सब तो फर्स्ट नंबर ते जोन आ जिहड़ा कि इक्वेटर दे उपर ही है ना, इक्वेटर दे नेड़े नेड़े भी आ ते उपर भी आ, उत्थे की आ हॉट जोन जां उहनूं आपां कह दिंदे आ टॉरिड जोन। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन। हाँ जी, हुण इक्वेटर तो जे तो नॉर्थ वाली साइड 23 डिग्री तक जाने आ, उत्थे की है, उत्थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ, तो नीचे साउथ वाली साइड नूं उन्ने डिस्टेंस ते जे आपां आउंदे आ इक्वेटर तो उत्थे हैगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन, ठीक है। तो यही सब तो वध गर्मी वाला जोन आ, हॉटेस्ट जोन आ पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। द सन शाइनस वर्टिकली एट नून ओवर दिस पार्ट ऑफ द अर्थ। तो इत्थे सूरज जिहड़ा आ दोपहर के समय धरती के इसे पार्ट के उपर सब तो वध चमकदा आ, ठीक है। तो सब तो वध इत्थे ही गर्मी हुंदी आ, इस करके इहनूं इस जोन नूं आपां हॉट जोन जां टॉरिड जोन का नाम दिंदे आ, ठीक है। ओके, अगे आ गया मॉडरेट और टैंपरेट जोन। हाँ जी, हुण हॉट जोन जिहड़ा सी उहनूं आपां ऊष्ण तापखंड कह दिंदे आ पंजाबी च, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा मॉडरेट और टैंपरेट जोन उहनूं उप ऊष्ण खंड कह दिंदे आ, ठीक है। It lies between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere। हुण इहदा एरिया कित्थों कित्थे तक हुंदा, उपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो लैके आर्कटिक सर्कल तक नॉर्दर्न हैमिस्फेयर च, ते नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन तो लैके अंटार्कटिक सर्कल दे विच हुंदा साउदर्न हैमिस्फेयर च, ठीक है। उहनूं आपां उस एरिया नूं कह दिंदे आ मॉडरेट और टैंपरेट जोन। द सन इज़ नैवर ओवरहेड इन दिस जोन, ठीक है। तो कभी भी सूरज इस इन्हां जोन्स दे उपर सीधा नहीं पैंदा, ठीक है। इट इज़ नाइदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर। तो इत्थे ना तो गर्मियां च ज़्यादा गर्मी हुंदी आ ते ना सर्दियां च ज़्यादा सर्दी हुंदी आ। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द टैंपरेट जोन। तो इस करके इस जोन नूं भी काहदा नाम दे दिता जाता, टैंपरेट जोन का, ठीक है, उप ऊष्ण खंड का। नैक्सट आ गया द कोल्ड और द फ्रिजिड जोन, ठीक है। हुण तीसरा जिहड़ा जोन हैगा वो किहड़ा आ गया, शीत खंड, है ना। इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हैमिस्फेयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हैमिस्फेयर, ठीक है। हुण कोल्ड जोन जिहड़ा वो कित्थे हैगा, उपर तां ये आर्कटिक सर्कल तो लैके नॉर्थ पोल तक जांदा, जिथे नॉर्दर्न हैमिस्फेयर च उत्थे इहदा एरिया, ते नीचे साउथ च अंटार्कटिक सर्कल तो लैके साउथ पोल तक, ठीक है, साउदर्न हैमिस्फेयर च उत्थे इहदा जिहड़ा हैगा ये सिचुएटेड हैगा। ते उत्थे ज़्यादा ना तां मतलब गर्मी हुंदी है, उत्थे की हुंदा आ हमेशा ही ठंड हुंदी आ। ते इत्थे की आ, इत्थे सारा साल की हुंदी फिर ठंड ही रहिंदी है, इत्थे गर्मी नहीं हुंदी, ठीक है। हाँ जी, नीचे हुण हैगे जी पॉइंट्स टू रिमैंबर, ये सारे आपां ऑलरेडी चैप्टर दे विच रीड कर लिया। तुसीं इहनूं एक बार दोबारा पढ़ लिओ क्योंकि यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चनस दे विच आ जाने सारे, ठीक है। ये पॉइंट सारे याद कर लिओ। सो ये सी अपना चैप्टर नंबर 2, ठीक है। हुण मैं तुहानूं क्लीयर करता, एक्सप्लेन करता एक्सरसाइज, ते नैक्सट वीडियो च आपां इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करांगे, क्वेश्चन आंसर्स फिलअप्स वगैरह, है ना, वो करांगे। पहला इनू ध्यान दे नाल सुन लो, समझ लो, ठीक है। दैन इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न क्वेश्चन आंसर्स एंड फिलअप्स, ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट दे विच उही गल तुहानूं कहना चाहुंदी है कि जे तुहानूं वीडियो लैसन वधिया लगदे आ, ठीक है, तो तुसीं अपने फ्रेंड्स दे नाल शेयर करो, ओके। तो चैनल सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रैस कर लो ताकि तुहानूं न्यू वीडियो जदों भी अपलोड हुंदी है उहदा नोटिफिकेशन तुहानूं मिल जाए, तो तुसीं इसे तरह जल्दी देख सको, है ना। तो हुण एग्जाम दे लई तुहानूं जिहड़े चैप्टर्स की जरूरत हैगी आ वो चैप्टर मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो जल्दी तो जल्दी वीडियोज़ बना के तुहाडे तक पहुँचावां ताकि तुहाडे पेपरां दे विच वधिया मार्क्स आ जाण, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।